All right, so let us start with chapter number 10, CET, JEE and NEET preparation on chapter number 10, magnetic fields due to electric currents. I am expecting you should know some formulas, जैसे what is Biot-Savart law, what is the magnetic induction at a distance A from a long straight wire, what is the magnetic induction at the center of a circular loop carrying a steady current I? What is the magnetic induction at a point on the axis of current carrying circular loop? What is the magnetic induction at the axis of solenoid? What is the magnetic induction near the one end of the solenoid? What is the magnetic induction at the axis of toroid? So this all I'm expecting that you should know, and I have given you 2 days to revise. So which means yes, you know this. So let us start with first question. A length L of wire carries a steady current I. It is bent first to form a circular plane coil of 1 turn. हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हमने इसको बेंड करके एक सर्कुलर कॉइल बना लिया ऑफ 1 टर्न. ओके, द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव अ डबल लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस. सेम वायर है, एक टर्न था, अभी आप करोगे इसमें 2 टर्न, तो डेफिनेटली रेडियस विल बी स्मॉलर. तो अगर ये R1 है तो दिस R2 विल बी R1 by 2. क्यों ऐसा? वायर का लेंथ सेम था, एक टर्न लूंगा तो R1, 2 बनाऊंगा तो R1 by 2, 3 बनाऊंगा तो R1 by 3, 4 बनाऊंगा तो R1 by 4. It is quite logical because length of the wire is the same. So it is very logical thing, you should know this. And आगे बोला है the magnetic field at the center caused by the same current. जब एक टर्न था तो भी करंट स्टेडी करंट I था, and in second case also steady current is I. So what is the magnetic induction? What is magnetic field at the center? So how will you solve this question? Extremely simple question. You should know the formula. आपको पता होना चाहिए magnetic field at the center is mu0 by 2 I by R. This is what you need to know. ये है सिंगल टर्न के लिए. For n turns you should multiply by n. तो you see mu0 is constant. Current भी बोला है same current, मतलब I is also constant, 2 is also constant. So this means B is proportional to n by R. So therefore you will have B2 by B1 equal to, अच्छा ठीक है, काम करते हैं, I will write down over here. So B2 by B1 you will have N2 by N1 and here R1 by R2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है. गुड. देन ऑफ कोर्स N2 मतलब 2, क्योंकि उन्होंने बोला है पहले एक टर्न था, फिर कितने थे? 2. तो N2 is 2, N1 is 1. R1 मैंने अभी बताया आपको, मैंने बताया जब 2 टर्न लोगे तो R2 will be R1 by 2. R2 will be R1 by 2. तो R1 by R2 will be 2. नहीं समझ में आया तो doesn't matter. R1, R2 is R1 by 2. ऐसा लिख दो, ये और ये कैंसिल, इसको भेज दो ऊपर. तो B2 by B1 equal to 4. तो B2 will be 4 times of the initial value. So it will be 4 times of its initial value. But wait, that is right. But we should make a trick. याद रखना, अगर करंट स्टेडी है और सेम लेंथ है, पहले एक टर्न था अब 2, बाद में 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, तो उसका एक स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बनता है. सो यू शुड नो दैट ट्रिक. So we can make a trick and solve this question orally. So if small n is n2 by n1, number of turns in the second case upon first case, and if current is steady, there is no change in the current, then you can directly write down B2 is equal to n square times of B1. तो क्या होगा?
B2 is equal to n square, but small n is n2 by n1. हमारे केस में n2 कितना 2, n1 कितना 1, तो 2 by 1 is 2, तो small n कितना 2, 2 square times of B1, 4 times of B1. तो ये सब सॉल्व करने की जगह पे जस्ट रिमेंबर B2 is n square times of B1, where small n is number of turns in the second case to that of number of turns in the first case. अगर मैंने 3 turns बोला होता तो 9 times of B1. So this is how you can solve this question. Next question. A current I ampere flows in a circular arc of wire whose radius is r, which subtend an angle of 3 pi by 2 at the center. तो ये जो एंगल ये आर्क बना रहा है सेंटर पे, दिस इज 3 pi by 2. Magnetic induction at the center is. Now to solve this question you again have two methods, but बहुत सारे बुक्स में लेंदी मेथड दिया है. Almost all what they will do is वो बोलेंगे कि पहले मान लो कि पूरा का पूरा लूप था, फिर सेंटर पे आपको पता ही है, अभी भी देखा μ0 I by 2r. फिर एक काम करो कि 1/4 कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो फाइंड करो. तो टोटल इंडक्शन में से ये 1/4 मिसिंग है, इसलिए 1/4 पार्ट को सबट्रैक्ट कर दो. यू डोंट नीड दिस. हाँ, इफ यू रिमेंबर हमने एक फॉर्मूला बनाया था, मैंने आपको कभी बता दिया था कि याद रखना काम की चीज है. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज μ0 by 4 pi आएगा. पाई डिलीट कब होता है? जब आप थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हो तो अपने आप को वहां से डिलीट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, राइट. 4 μ0 by 4 pi I by r. Okay, you need to remember this. This is the formula for magnetic induction at the center due to current in the arc making angle theta. हमारे केस में थीटा कितना डायरेक्टली 3 pi by 2, तो हम वो नहीं करने वाले. पूरा सर्कल लो, फिर इतना पार्ट नहीं है, उसका फील्ड कितना होता है वो माइनस करो. नो, डायरेक्टली दिस. So we will directly be doing μ0 by 4 pi I by r, क्योंकि I is small, I यहाँ पे by r. थीटा is 3 pi by 2. pi और pi कैंसल, तो ये आ जाएगा 3 और नीचे 8. तो you will be getting magnetic induction at the center will be of course 3 by 2 into 4 is 8 और r, और ऊपर है μ0 I. So do you see an answer here? Option number D. Next question. The magnetic induction at the center O in the figure shown is. तो ऐसा है, आपके पास there is a wire which has 2 straight parts and 2 curved parts. तो 2 सेमी सर्कल्स है और 2 स्ट्रेट लाइन है. तो इट इज समथिंग लाइक दिस. So you have something like this. Then, of course, they are asking you what is the total magnetic induction here at the center O. तो सबसे पहले करंट जा कैसे रहा है वो देखो. करंट इज गोइंग लाइक दिस, then it goes from here, then it goes from here, and then it goes from here. मैं काम करता हूं, इसका नामकरण कर देते हैं. पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4. अब यू शुड नो वन थिंग. ये अगर स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, और स्ट्रेट लाइन में अगर स्ट्रेट वायर में अगर स्टेडी करंट आए है और यहाँ पे एक पॉइंट है P at a distance of A, what is magnetic induction at point P? μ0 by 4 pi 2 I by A. Correct? Good. Where A is perpendicular distance. But यहाँ पे if you imagine ये P point यहाँ पे ना होते हुए it is somewhere over here.
है ना, ऐसा ही है वो. यस इट इज लाइक दिस. इफ यू इमेजिन, ऑफ कोर्स अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझेगा. क्या समझेगा? ऐसा समझेगा. स्ट्रेट पार्ट 1 और वो जो पॉइंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट है. वो जो पॉइंट, ओ पॉइंट जहां पे आपको फील्ड फाइंड करना है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट है. तो हमने स्टेट बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें मैंने बताया था आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था. ऐसा ही क्वेश्चन था वेयर आई टोल्ड यू अगर वो पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ द करंट होता है तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन बिकम्स 0. तो यहाँ पे पहला पार्ट और थर्ड पार्ट का फील्ड में कंट्रीब्यूशन कितना? 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to know this very well. You have to say B1 and B3 these are 0. Both are 0. क्यों? Because you see directly in the direction of current. ऐसा क्यों? तो Biot-Savart law, sin of theta, theta is 0. 0 sin 0 is 0. याद होगा तो याद होना चाहिए. वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर. यहाँ पे होता है sin थीटा. इफ थीटा इज 0 दिस इज 0. इफ दिस इज 0 dB इज 0. मतलब जब वो पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया, अलोंग द लाइन ऑफ करंट आ गया तो कंट्रीब्यूशन विल बिकम 0. तो ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए. बिकॉज इन द मॉर्निंग सेशन आई आस्क्ड कि हाँ आप तो ऐसा बोल रहे हो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका a डिस्टेंस पे, लेकिन हमारे केस में पॉइंट यहाँ पे है तो a इक्वल टू 0 है. तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फील्ड? एंड दे सेड b इक्वल टू म्यू 0 i बाय 2a. a 0 तो इंफिनिटी, नॉट इंफिनिटी, इट इज 0 contribution. You need to know this. It is 0 contribution. So then अब बचे दो पार्ट, एक ये और एक 4. तो B3 will be equal to, अभी मैंने बताया है ना, सिर्फ एंगल. इस पार्ट ने एंगल कितना बनाया? 180. तो B3 will be म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय R1 आई बाय R1. क्यों R1? क्योंकि ये देखो इनर सेकेंड पार्ट का रेडियस कितना है? R1. तो मैं क्या लिखूंगा? R1. और एंगल कितना? पाई रेडियंस. पाई रेडियंस, थीटा इज पाई रेडियंस. कैंसल एंड कैंसल. वेरी गुड. तो आपको देयरफॉर यू हैव ऑब्टेन्ड B3 इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 I बाय R1. क्लियर? सिमिलरली B4 field due to fourth part will be mu 0 by 4 pi I by R2. और एंगल कितना? पाई. क्योंकि ये पार्ट भी कितना बना रहा है? 180. सिर्फ R2 आएगा. ओनली थिंग इज इट विल बी R2. दैट्स इट. तो ये याद रखना फोर्थ पार्ट का रेडियस R2 है इसके लिए. तो ये हो गया आपका कैंसल एंड कैंसल. देयरफॉर B4 इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 I बाय R2. गुड. हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन. ऐसे ही बोला है ना? यस. तो टोटल फाइंड करना है आपको. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट टोटल. तो ऑफ कोर्स टोटल विल बी B2. हाँ ठीक है. B1 एंड B3 दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग. तो लिख सकते हो ऐसा. You can say it is from B1 plus B2 plus B3 plus B4. उसमें से B1 and B3 they don't contribute. तो B2 plus B4 ऐसा लिख सकते हो. So this is equal to, याद होगा, म्यू 0 by 4 I by R1 plus म्यू 0 by 4 I by R2. तो म्यू 0 by 4 और I कॉमन, 1 by R1 plus 1 by R2. ऑप्शन बी -1. नॉट +4 बट -1. डायरेक्शन कौन देखेगा?
Yes. So right hand thumb rule. Hold or imagine that curled fingers give you direction of current. क्योंकि वहां पे कर्व्ड वायर है, कर्व्ड वायर. अगर स्ट्रेट वायर होता, so imagine the wire to be held in your right hand with fingers curled and thumb outstretched. If the thumb gives you direction of current, then fingers give you direction of magnetic field. But in case of circular loop carrying current is given by curled fingers and thumb gives you direction of. And look for the second part. Second part में current is clockwise. तो right hand thumb rule के हिसाब से field is going inside. तो याद रखना, अगर ये भूल गए तो गए. Inside मतलब क्रॉस. तो यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट का, नॉट थर्ड पार्ट का, सेकेंड पार्ट का. इसको मैंने थोड़ा सा ये गलत लिखा है, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड पार्ट, ओके, सेकेंड पार्ट का फील्ड इज गोइंग इनसाइड, तो क्रॉस. फर्स्ट और थर्ड का तो जीरो है, नो इश्यूज. फर्स्ट एंड थर्ड इज जीरो. फर्स्ट एंड थर्ड जीरो क्यों हुए? क्योंकि दे आर, I mean the point is along the line. तो ये जीरो है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन किसका किसका आएगा? सेकेंड एंड फोर्थ का. सेकेंड में रेडियस कितना था? R1, और डायरेक्शन क्या आया? इनसाइड. राइट. अब व्हाट अबाउट पार्ट नंबर 4? राइट हैंड थंब रूल. थंब विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, मतलब हियर it will be outwards, तो denoted by a dot. तो यहां पे आएगा डॉट. मतलब B2 and B4 are oppositely directed vectors. मतलब दोनों में होगा subtraction, not addition. लेकिन subtraction का प्रॉब्लम ये है, हाँ ठीक है, यहाँ पे तो easy, बट प्रॉब्लम ये है, अब पता होना चाहिए कि कौन सा वेक्टर बड़ा है. तो अभी वेक्टर कौन सा बड़ा है वो समझने के लिए यू हैव टू से हियर. ओके, तो याद रखना यहाँ पे आई विल जस्ट नोट डाउन ओनली फॉर वंस एंड देन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. बट B2 and B4 are oppositely directed. Right? And what you know is, आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? आपको है ना इंफॉर्मेशन, B का फॉर्मूला याद है आपको? μ0I/4R. So B is proportional to 1/R. So B is inversely proportional to R. जिसका रेडियस कम उसका फील्ड ज्यादा. राइट. So R1 is less than R2. R1 is लेस देन R2. ये था आपका R2. तो सेकेंड पार्ट का रेडियस कम है, तो सेकेंड पार्ट का फील्ड होगा ज्यादा. देयरफॉर B2 इज ग्रेटर देन B4. करेक्ट. तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त आप बोलोगे देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B2 माइनस B4, नॉट B4 माइनस B2. क्यों? क्योंकि समझ में आ गया, जिसका रेडियस कम उसका फील्ड ज्यादा. फील्ड किसका ज्यादा है? सेकेंड पार्ट का. और कम किसका है? फोर्थ पार्ट का. तो दिस इज हाउ यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग. तो यहां से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको एंड यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग हियर आल्सो. राइट. तो ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर ए. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 50 turns of a wire in every centimeter. You have to pay attention at every single word here. Every centimeter. 50 turns per centimeter. आपको याद होगा small n. You define small n as number of turns per meter. तो ये आपके पास per meter मतलब per unit length होता है, पर ये per centimeter है. How many meters are there in 1 centimeter? 10 पावर माइनस 2. ओके, तो ये 10 पावर माइनस 2 ऊपर जाके प्लस होगा, तो आपको n मिलेगा 50 इंटू 10 पावर
2 मतलब 5000, 15 to 10 power 3 पर मीटर। तो 1 मीटर में 5000 टर्न्स ऑफ वायर इन 1 मीटर। ओके, 5000 of a long solenoid. If 4 ampere current is flowing in the solenoid, 4 एम्पियर का करंट है, the approximate value of the magnetic field along its axis at internal point and one end respectively will be। तो अगर आपको याद होगा हमने सोलेनॉइड लिया था एंड रिमेंबर यहाँ पे जो कोर जो बेस मटेरियल है ये मैग्नेटिक है नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। देयर इज अ सोलेनॉइड एंड देयर आर वाइंडिंग्स, तो इसके ऊपर देयर आर वाइंडिंग्स। तो यहाँ पे वाइंडिंग्स है एंड यू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पर यूनिट लेंथ पर मीटर इज 5000 एंड पर सेंटीमीटर इज 50। इसमें से करंट पास हो रहा है स्टेडी करंट ऑफ 4 एम्पियर और आपको पता होगा ये उसका एक्सिस है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज नथिंग बट एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। और अगर आपको याद होगा ये जो एक्सिस पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हो इट इज μ0 n into I। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि यू शुड नो दिस फॉर्मूला μ0 n I। देन एट द वन एंड, नियर टू द वन एंड, इफ यू रिमेंबर थियरी मैंने आपको ये बताया था कि जब करंट पास होगा तो नीचे से फिर ऊपर जाएगा, राइट, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो लोअर और अपर दोनों पार्ट का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। सिर्फ एक एंड देखना है तो एक्सियल फील्ड बाय 2 करना पड़ता है, क्योंकि जब एक एंड की बात करते हो तो सिर्फ लोअर पार्ट अगर लोअर एंड की बात कर रहे हो, अपर पार्ट अगर अपर एंड की बात कर रहे हो, तो करंट थ्रू ओनली लोअर और ओनली अपर विल कंट्रीब्यूट। तो ये याद रखना, magnetic field near to the one end is equal to axial field by 2। Basics should be very clear। अगर इतना याद है तो you can solve this question directly now, because you will say B axis is μ0 n I is in ampere, SI unit, yes, n is in per meter, yes, क्योंकि आंसर is also per meter square, वेबर per meter square। तो μ0 is 4 pi into 10 power minus 7 and n is 5 into 10 power 3 and current is 4। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी कैसे सॉल्व होता है, लुक, 5 into 4 is 20, 20 का 2 अलग कर दो और 10 अलग, 10 power 3 और 10 power 4 और minus 7 minus 3, 4 pi into 2 क्योंकि वो 2 था, तो 8 pi is roughly 3, roughly 8 3 था 24, लेकिन pi is greater than 3 ना, तो आंसर will be 24 से बड़ा into 10 power minus 3, 24 से बड़ा into 10 power minus 3, तो ऑप्शन सी और डी में से एक, राइट। देन ये हो गया आपका एक्सियल फील्ड, तो एक्सियल फील्ड आ गया आपका 25.1 into 10 power minus 3 और at the one end will be half of axial value, तो 25.1 divided by 2 करोगे तो 12.5 12.6 into 10 power minus 3 अगेन, तो कहां पे है, ऑप्शन सी 12.6 into 10 power minus 3, इट इज एट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, the charge on a particle y is double the charge on particle x. These two particles x and y, after being accelerated through the same potential difference, enter a uniform magnetic field and describe circular path of radius r1 and r2 respectively. The ratio of the mass of x to that of y is, अगर आपको याद होगा साइक्लोट्रॉन में आपके पास 2 डी शेप्ड हॉलो मेटालिक स्फीयर होते हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस। देन देयर आर 2 डी शेप्ड हॉलो मेटालिक स्फीयर्स और राइट इन द सेंटर ऑफ दीज 2 डी शेप्ड हॉलो मेटालिक स्फीयर, right in the center you place a radioactive source of alpha particle emitting positively charged alpha particles। of course इसको आप कनेक्ट करते हो हाई फ्रीक्वेंसी
ऑसिलेटर से। इसका काम क्या है, वैल्यू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करते रहना, मतलब स्विचिंग द पोलैरिटी ऑफ द डीज। तो ये जो D1 एंड D2 है इसके पोलैरिटीज को वो चेंज करता रहेगा। देन ऑफ कोर्स आप इसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। यू शुड नो मैग्नेटिक फील्ड का काम सिर्फ इतना ही है कि इस पार्टिकल के पाथ को सर्कुलर बनाना, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सेशन का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो इस केस में वी हैव डिराइव्ड अ फॉर्मूला। इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर, यू हैव टू गो एंड रिकॉल। R equal to 1 by B under root of 2mv by q। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m, b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m। वहां से आपको r मिलता है 1 by b अंडर रूट ऑफ 2mv अपॉन q आफ्टर सॉल्विंग। हमारे पास दो पार्टिकल है, हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया क्या, नहीं, b इज द सेम, हमने चेंज नहीं किया, मतलब b इज कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस हमने चेंज किया क्या यहाँ पे, नहीं, मतलब दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो 2 तो वैसे भी कांस्टेंट, व्हिच मींस r इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m बाय q, करेक्ट, गुड। देन आपको किसका रेशियो पूछा है, आपको पूछा रेशियो ऑफ मास, तो यहां से आपको मिलेगा r स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m बाय q, मतलब आपको मिलेगा m इज प्रोपोर्शनल टू r square into q। इसका मतलब यू कैन राइट डाउन हियर rx या फिर mx, मास का रेशियो पूछा है आपको, तो mx बाय my इक्वल टू rx अपॉन ry का स्क्वायर और qx अपॉन qy। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन rx इज r1, तो r1 स्क्वायर और ry इज r2, तो r2 स्क्वायर, qx by qy। चार्ज ऑन पार्टिकल y इज डबल दैट ऑफ q, चार्ज ऑन पार्टिकल y इज डबल दैट ऑफ q, तो आपको यहां से मिल जाएगा qx by qy इक्वल टू हाफ, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाफ, तो ये आ जाएगा 1/2 r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन दिखता है क्या, और ऑप्शन सी r1 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r2 स्क्वायर। So this is how you are supposed to solve this question. So that's it for today. We are going to stop at this question.